Hello students, today we are going to start our new lesson, that is quadrilaterals. In this lesson we are going to study what is meant by quadrilaterals and some related terms of quadrilaterals. So here I have drawn a quadrilateral. Quadrilateral means what? A polygon who has four sides. ऐसा कोई polygon जिसके पास खुद की चार sides होती हैं उसको आप क्या बोलते हो? Quadrilaterals. So here quadrilateral ABCD is a quadrilateral. In case of this quadrilateral ABCD, we are going to see what is or which are the vertices of the quadrilateral. Vertices means what? The point A, the point B, point C, point D are the vertices of the quadrilateral. Means we can say that the side joining points, AB और AD, ये जो दो साइड से उनको ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट था वो क्या था? A था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्टाइसेस. सो कौन से वर्टाइसेस हमारे पास में? A, B, C and D. So ABCD are the vertices of the quadrilateral ABCD. Okay. Then which are the sides of the quadrilateral? Side means what? AB. Sides means जिसका यूज करके हमने quadrilateral को बनाया है ना? The segment by which the quadrilateral is made is known as the sides of the quadrilateral. Here AB is the segment which are going to we are going to use to make a quadrilateral. So AB, BC, CD and AD, these are the four sides of a quadrilateral. So I am going to write the names here: AB, BC, CD and then last AD. Okay, so the quadrilateral will always be having four sides because a quadrilateral is a polygon who is made up of four sides. So AB, BC, CD and AD are the four sides of this quadrilateral. Then which are the angles? Angles, we know that any two sides if joined at any one point, the angle created between them, है ना? तो यहाँ पे बोल सकते हो जैसे यहाँ पे एंगल A एक क्रिएट हो रहा है, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितने एंगल्स होंगे? फोर एंगल्स. तो मैं इनके नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ: एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. So quadrilateral will always having four angles. Then which are the adjacent side? Adjacent का मतलब क्या होता है? जो sides नजदीक नजदीक है, चिपक के हैं, मतलब two sides which with a common point, है ना? कोई भी दो साइड जिसमें एक कॉमन पॉइंट है वो आपका क्या होगा? एडजेसेंट साइड. जैसे फॉर एग्जांपल AD and DC. AD and DC, these are the two sides of quadrilateral, but both of them having a common point, that is point D, है ना? तो जब भी आपके पास ऐसी दो साइड्स आती है जिसमें एक पॉइंट आपका कॉमन आ रहा है तो वो आपका क्या होगा? एडजेसेंट साइड. सो AD and DC are the adjacent side in case of this quadrilateral. So we can say that side AD and DC, side AD and DC are the adjacent side. और मैं क्या लिख सकता हूँ? AD DC हो गया. DC के साथ BC भी adjacent side है तो मैं लिख सकता हूँ side DC and BC. इसके अलावा BC के साथ कौन adjacent है? AB है तो मैं लिख सकता हूँ side BC and AB. और AB के साथ में कौन? AB के साथ में कौन है? AD है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइड AB एंड साइड AD. और AD के साथ में DC ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ. सो इस तरह से हमारे पास एडजेसेंट साइड के हमेशा फोर पेयर आएंगे इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. सो एडजेसेंट साइड मींस व्हाट? At the sides with a single common point are known as adjacent sides. So AD DC, DC BC, BC AB and AB AD are the four adjacent side pair in case of this quadrilateral. Then in case of this quadrilateral, which are the opposite sides? Opposite means what? आप अगर एक घर में रहते हो, आपके घर के सामने कौन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपोजिट. तो सेम यहाँ पे भी AB जो है, AB के एकदम सामने कौन है? CD है. तो AB का अपोजिट कौन हो गया? CD, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी तरह से साइड AB एंड AB के साथ क्या आएगा? उसके एकदम अपोजिट में कौन है? DC है. एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट. सो AB के लिए क्या आएगा? DC. देन इसके बाद में
ए बी के लिए अपोजिट कौन था, डी सी था, उसी तरह से ए डी के लिए अपोजिट कौन होगा, बी सी होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड ए डी एंड साइड बी सी, ठीक है। तो हमारे पास में अपोजिट साइड की भी दो पेयर होगी, एक पेयर है साइड ए बी इज अपोजिट विद डी सी एंड देन साइड ए डी इज अपोजिट विद बी सी। तो अपोजिट साइड की हमेशा हमारे पास दो ही पेयर होगी, क्योंकि ए बी से अपोजिट डी सी है और ए डी से अपोजिट बी सी है, इसके अलावा कोई और पेयर हमारे पास नहीं होगी। तो एडजेसेंट साइड की हमारे पास कितनी पेयर्स है, 4, जिसमें एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए। और अपोजिट साइड में पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी तो डी सी है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ए डी के साथ बी सी है, देयर इज नो ए सिंगल कॉमन पॉइंट इन बिटवीन दोज टू साइड्स। देन इन केस ऑफ What is meant by adjacent angle? Adjacent angle मतलब क्या, ऐसे एंगल जो नजदीक नजदीक में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए के एकदम नजदीक में कौन सा एंगल दिख रहा है हमें, अगर साइड वेज हम चलते हैं तो ए के साथ में बी दिख रहा है, ए के साथ में डी दिख रहा है, तो ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, बी हो गया, ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, डी हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल ए एंड एंगल डी। ए के साथ मैंने डी को लिख दिया, डी के साथ किसको लिखता हूँ मैं, सी को लिख लेता हूँ। तो कॉमा एंगल डी एंड एंगल सी। उसके बाद सी के साथ कौन आएगा, एंगल सी एंड एंगल बी। देन बी के लिए कौन आएगा, एंगल बी एंड एंगल ए। सो इन दिस वे वी कैन राइट डाउन द एडजेसेंट एंगल्स। ए के लिए डी है, डी के लिए सी है, सी के लिए बी है और बी के लिए ए है। तो कोई भी एंगल जो साइडवेज अगर आप मूवमेंट करते हो, जैसे मैं ये साइड से आगे बढ़ रहा था, ये साइड से आगे बढ़ रहा था, तो साइड से आगे बढ़ते समय जो सबसे पहले आपको एंगल मिलेगा वही उसका एडजेसेंट एंगल होता है ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है विच आर द एडजेसेंट एंगल इन दिस केस। देन एक लास्ट टॉपिक इसमें से जो बच रहा है हमारा वो होता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको साइड के बारे में बताया, एकदम मेरे घर के सामने जो रहते हैं वो क्या होंगे, मेरे अपोजिट, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एंगल ए से एकदम सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स। एंगल बी के लिए कौन आएगा, डी आएगा, तो एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे एक चीज मेरी छूट गई है, वो क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स में आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ व्हाट इज मीन बाय डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है, अपोजिट एंगल को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट होती है हमारी डायगोनल। तो यहाँ पे बी डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सेग बी डी, ये हमारा क्या है, एक डायगोनल है। और उसी तरह से सेगमेंट ए सी, ये भी हमारा क्या है, डायगोनल है ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है व्हाट इज वर्टाइसेस, व्हिच आर द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स एंड व्हिच आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इसके ऊपर बेस कुछ सिंपल न्यूमेरिकल हमें एक्सरसाइज में पूछे हैं जो आपको ट्राई करना है, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प मैं करना चाहूँगा बाय सॉल्विंग 2 न्यूमेरिकल्स। मैं आपको यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा जिनका यूज करके, और ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, इन सभी टॉपिक्स का यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करके देखना है आपको। और अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है, इट्स टोटल मस्ट बी 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की केस में अगर आप उसके चारों एंगल सम अप कर लो तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 360 डिग्री। मींस द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट द टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी 360 डिग्री। So first of all, we are going to solve a first question. In this question, the question is like this: 3 angles of quadrilaterals are 54 degree, 80 degree, and 116 degree. Find the fourth angles. तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर के 3 एंगल्स हमें उसने मेंशन किए हुए हैं और फोर्थ एंगल को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल की केस में चारों एंगल्स की एडिशन जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए 360। तो 3 के एंगल मुझे 3 की वैल्यूज मुझे दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा 360 में से इन तीनों की एडिशन को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा फोर्थ एंगल। तो देखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ एंगल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 360 माइनस सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स। सो 54 प्लस 80 प्लस 116। तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर लेता हूँ, 116 प्लस 80 प्लस 54, 6 प्लस 4 10
8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, बचा 1, 1 प्लस 1 2। सो देखो एक बार फिर से 6 प्लस 4 10, एक बच रहा है, 8 प्लस 2 10 प्लस 5 15, बचा 1 प्लस 1 2। सो इस केस में जो फोर्थ एंगल मेरा होना चाहिए वो क्या होगा, 360 माइनस 250। सो 360 में से अगर 250 को माइनस करता हूँ, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 110 डिग्री का एंगल होना चाहिए जो हमारा फोर्थ एंगल होगा इस क्वाड्रिलेटरल की केस में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ चुका है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करता है। यहाँ पे उसने बोला है द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:2, 3:2, 5:8। उसने अभी रेशियो दिया है, कोई भी एंगल दिया ही नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, आप कंसीडर कर लो लेट फोर एंगल्स बी। जो हमारे पास फोर एंगल्स है उनको मैंने कंसीडर कर लिया 2x, 3x, 5x एंड 8x, क्योंकि उसने हमें रेशियो दिया हुआ है 2:2, 3:2, 5:8। तो उसमें आप क्या करो, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो जो कॉमन होगा सभी के लिए x। अभी क्या करना है, मुझे मालूम है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या बोल सकता हूँ, ऑल एंगल्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स मस्ट बी 360। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से लिख सकते हो, आपको लिखना है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है बट आपको लिखना है उस तरह से। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप क्या बोल सकते हो, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इज मस्ट बी 360। तो ऐड करो इसको, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18। तो यहाँ पे मेरी सम आ रही है 18x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 अपॉन 18, 18 2 जा 36 और ये 0, मतलब मेरा वैल्यू जो आ रहा है, x की जो वैल्यू आ रही है वो है 20 की। तो x की वैल्यू 20 है, मुझे निकालने हैं सभी एंगल्स, तो मैं इनको यहाँ पे निकाल लेता हूँ, साइड में जगह थोड़ी सी कम है। तो 2x हो जाएगा मेरा फर्स्ट एंगल, दैट इज 2 × 20 जो हो रहा है 40 डिग्री। उसके बाद सेकंड मेरा जो एंगल है वो है 3x, दैट इज 3 × 20 दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद मेरा एंगल है 5x, दैट मीन्स 5 × 20 दैट इज 100 डिग्री। और लास्ट में मेरा एंगल है 8x, दैट इज 8 × 20, ये हो जाएगा 160। तो ऐड करके देख लो एक बार, आपका टोटल बराबर 360 आना चाहिए। तो 160 में प्लस 100 कितना हो गया, 260, 260 प्लस 40 हो जाएगा 300 और प्लस 60 हो जाएगा आपके 360 डिग्री। सो आई होप आपको जो है ये बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी समझ में आ चुका है, और ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए हैं वो भी आपको समझ में आ चुके हैं। अगर इसमें कोई डाउट आपको आ रहा है तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वो डाउट्स आपके हैं तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको कोई डाउट नहीं है या फिर आपको जो भी क्वेश्चन सब आ रहे हैं वो सबको आप सॉल्व करना है, और क्वाड्रिलेटरल की आपकी जो एक्सरसाइज है उनको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।